A very good afternoon to all of you. How are you all? Good Ma'am, we are afternoon, ma'am. fine. Good Afternoon, afternoon. ma'am. Good Ma'am. afternoon. Afternoon, ma'am. We are fine. A Afternoon, very ma'am. good afternoon, students. A very warm welcome to the BVIMR family. Now you have entered a BVP, so you are going to, have amazing years of your life, college, and I just want you guys to focus and enjoy your new learnings that you have done. So today is the fifth day of your orientation. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, Yes, ma'am. Good so afternoon, ma'am. good afternoon, good afternoon. So, what you all Ma'am, have learned in these 5 days? actually, I was saying, can you make me presenter so that can I admit the student who are waiting in lobby? No, I am admitting the students. They are coming one by one. Okay, ma'am. Okay, thank you, ma'am. Yeah, that's no not an issue. Actually, the internet connection is nowadays being slow. So I have done that. It will take just a minute. So, how is your orientation going on? Ma'am, they are going pretty good. I'm So, nice. what you have learned in all these Great. 5 days? Ma'am, mostly the basics like etiquettes and Yeah. all. और आपने वर्चुअल Leadership. टूर किया BVIML का आइस ब्रेकिंग सेशंस किए आपने We did और the you have virtual tour also. yeah virtual tour then you have emotional intelligence stress Yes. busters by Brahm Kumari sessions you have a lot of sessions in this orientation so Yes, what you ma'am. have आपने इसे इनकलकेट क्या किया अपनी लाइफ में लाइक पढ़ना सुनना एक चीज होती है बट उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट so what you have learned from this orientation and class I Ma'am, just want to the say thing, just the feel thing, free and be cool there is no issues you are free to ask even stupidest of the question any simple to simple question you just feel free and be comfortable and have an interactive session we gonna learn from may I each speak? other yeah May I please speak? yeah Ma'am, the thing which I learned is to be a good human being, be happy always, support each other, and yeah don't be mean. That's the basic yes learning of the whole 5 days. The that's absolutely correct ma'am, the thing I learned was how to be a more combined and a collective person. okay nice. I think you all have learned something out of it. So let's start today. आज का जो topic है students, it's really it's not just dedicated to your BBA specifically. It's more important towards your life, how you treat yourself towards yourself. Okay, so let's start. I'm sharing the presentation with you guys. Okay, just a second. Are you able to see the presentation? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. So, what's the topic for today's discussion? Ma'am, your Right mindset. Ma'am, your Sorry. screen is visible, That but that PPT is not Right uh, visible. mindset, development of Ma'am, right how to mindset. Uh, develop a right mindset out of BBA? बेटा आप दोबारा ट्राई करो आई हैव शेयर्ड इट प्लीज चेक अगेन माइट बी ऑन इंटरनेट कनेक्शन में बी पुअर No, No, ma'am, ma'am, the it's PPT not is visible. इट्स Ma'am, नॉट I have विजिबल seen आई स्टॉप शेयर Yes, एंड ma'am. देन स्टार्ट अगेन जस्ट अ yes, सेकंड ओके please. so the today's topic is how to develop right mindset to get best out of BBA. What is your understanding from this topic? Can anyone tell me? yes, ma'am. Ma'am, I'm how to approach. it is Yeah, how to please. develop the correct skill set and the correct motivations, the correct etiquettes for doing a course like BBA or for doing a business venture or a job in the future.
Okay, nice. Or anyone else? Ma'am, to set the person's way of thinking and their opinions also. Now is it visible to all of you? Yes, ma'am. Yes, Beta, ma'am. is it visible? Yes, Yes, ma'am. It ma'am. is. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, that's fine. So, just a second. Uh, Yeah, Excuse me, ma'am. yeah, beta. Sorry to interrupt you, but there are students waiting in lobby. They are Yeah, messaging. I have admitted them. Don't worry. Thank you, ma'am. Yeah. So, how to develop a right mindset to get best out of BBA? Do you know? आप सबको पता है कि अभी आप लोग 12th करके आए हो, राइट? तो आप सबने 12th के लिए उसके बाद क्या किया? मतलब जस्ट आपका रिजल्ट आया, यू लुक्ड फॉर इट कि कौन सा कोर्स है और आपने एडमिशन ले लिया, राइट? ऐसा ही हुआ आपके साथ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आप एक बात बताओ, हमेशा से हमारे साथ क्या होता है बचपन में जब हम 10th क्लास में हैं, पेरेंट्स यूज्ड टू से दैट 10th इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, रियली वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अच्छा स्कोर करना है, आपका करियर बनेगा। तो आपने 10th आपने अपीयर किया, यू स्कोर गुड, फिर आप 11th में आ गए, 11th में आपने स्ट्रीम चूज करी कि क्या स्ट्रीम है, कैसे स्ट्रीम है, राइट? Yes, ma'am. हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. Yes, ओके, ma'am. देन उसके बाद क्या कहते हैं, या देन उसके बाद आपने फिर 12th करी, भाई 12th करो, अब करियर भी इंपॉर्टेंट है, अब आपको लाइफ लॉन्ग आपका करियर बनना है, कॉलेज में जाना है, अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, हैव टू बी यू नो वेरी गुड स्कोरर। आपने मार्क्स स्कोर किए, आपने अब जैसे आप सब ने बीवीपी ऑप्ट किया एंड नाउ यू हैव ऑप्टेड फॉर बीबीए। इतने सब जितना लाइक फ्रॉम पास्ट 2-3 इयर्स जो भी हमारी जर्नी रही है, क्या इस जर्नी में आपने कभी अपने लिए सोचा है कि what exactly you want? No. Have you thought about what you really want in life? Yes, ma'am. Wow, that's really wonderful if you have thought of it. Not very But much. not very much. हम लोग क्या करते हैं यार, बस एक रेस है, दौड़ना है हमें इस रेस में यार, बस हमें जाना है, 10th करनी है, 10th के बाद कॉमर्स लेनी है या मेडिकल लेना है, नॉन मेड लेना है, ह्यूमैनिटीज आर्ट्स कुछ ना कुछ लेना है, और बस दौड़ते रहना इस रेस में। फिर 12th आ गई, 12th के एग्जाम्स दे दिए, अब कॉलेज में जाना है। हाय, अब हमें रिलैक्स लग रहा है, अरे यार अब आएंगे मजे, अब आएगा फन, अब हम बड़े हो गए हैं, वी कैन यू नो हम अपनी क्लास बंक भी कर सकते हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, राइट? सबको ये फीलिंग होती है। बट बेटा जो ये 3 इयर्स हैं आपके आपके जो these 3 years are very crucial years for your life. It's not about कि आपको फोकस करना है कि नहीं भाई मुझे सिर्फ अपना करियर बनाना है, मुझे पढ़ाई करनी है, डिग्री लेनी है और बस जॉब नहीं, आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट इस 3 इयर्स में होती है। यू गेट टू इंटरेक्ट विद a lot of people है, जो आपसे बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, you get to learn from experiences. So this is, so for me BBA is not something, can you all able to see, can anyone read it out for me what's written there? Your voice is cracking, ma'am. Can anyone read it for me, what's on the slide? Journey of the self, Journey to with the the self, self. to the self. To the self, to the self. To the self. To the self. Can you tell me its meaning, anyone, one by one please? How BBA is a journey of the self, through the self and to the self. Ma'am, ultimate aim of BBA is for self improvement. Of our Personal own development, absolutely correct. We should improve Yes, ourselves at the end. yes, Ma'am, it's absolutely. Yeah beta, speak. It is the journey to develop new mindsets and give a new exposure to yourself. Absolutely correct. So BBA for me, I want to give you a different perspective to see your BBA. It's just not a 3-year degree course जिसमें आपको BBA की डिग्री मिलेगी, नौकरी के लिए एलिजिबल होगे, आपको आगे जॉब करनी है या मास्टर्स के लिए एलिजिबल होगे, then you are done. No, BBA is something very very different. It's just not BBA,
it's your life. But right now we are here specifically talk about BBA. So it's a journey of your own self. यहाँ पर आप अपने आप को ढूंढते हो, अपनी हिडन पोटेंशियल्स को, अपनी स्ट्रेंथ्स को, अपनी वीकनेसेस को. हम कहते हैं कि हमें हमारी वीकनेस नहीं पता. हमें हमारी वीकनेस पता होना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हमें हमारी स्ट्रेंथ पता है. क्योंकि अगर हम अपनी वीकनेस पे वर्क करेंगे ना तो हम उसे अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं. राइट. अब एक बार बताओ, अगर मैं आपसे पूछती हूँ आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है, क्या आप जवाब दे सकते हो मुझे? No. Can you answer me? No, What ma'am. is your interest area? No. Why you don't? No, because ma'am. हमने कभी सोचा ही नहीं है. We never thought of it in that way. हमने बस ये सोचा है चलो बीबीए करना है, ये करना है, वो करना है, चलो 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 चलो. मतलब एक सीरीज, एक प्लान्ड सीरीज ऑफ एक्शन पे हम चलते चले जा रहे हैं. जैसे एक रोड है हमारे पास, एक स्ट्रेट लाइन है. एक स्टेप के बाद सेकंड स्टेप, सेकंड के बाद थर्ड स्टेप. हम उसी लाइन में फॉरवर्डली मूव कर रहे हैं. इंस्टेड हमें जिगजैग मूव करना चाहिए, हमें रिस्क लेना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं. आर वी एबल टू फिट इन दैट पर्टिकुलर पोर्शन और नॉट. अगर हम गलतियां करेंगे तभी तो हम सीखेंगे ना कि वो चीज गलत है और वो चीज सही है. अगर सब कुछ हमें, अगर आप कुछ कर रहे हो, मैं आपको पहले बता दूं बेटे ये गलत है, तो आप क्या वो गलती करोगे? विल यू डू दैट मिस्टेक? No. No, you'll not do that mistake, na? No, ma'am. So this is the way you learn. जब तक आप खुद गलतियों से, अब कहते हैं ना हर इंसान अपनी गलती से सीखता है. जैसे अगर आप स्कूल लाइफ में थे, बहुत सारे फ्रेंड्स, हम कहते थे यार बेस्टीज है, हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, वील बी फ्रेंड्स फॉर एवर. बट कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं, फाइट्स हो जाते हैं, वी डोंट इवन टॉक नाउ. ठीक है. तो बहुत सारे डिसीजंस होते हैं जो हमें लगता है कि नहीं वो सही है, बट कभी कभी वो गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं. वी डोंट नो. जब तक हम उन्हें टेकअप ही नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो सही है क्या वो गलत है. राइट. सो दिस इज योर ओन जर्नी वेयर यू विल एक्सप्लोर योरसेल्फ, वेयर यू विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस कि आप हो कौन, आप अपनी लाइफ में चाहते क्या हो, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, आपके इंटरेस्ट एरिया क्या है. ये आपकी जर्नी है और किसके थ्रू होगी? आपके ही थ्रू होगी. वाई? लाइक आई एम योर टीचर, आई एम योर गाइड, आई एम योर मेंटर. आपको कोई भी फ्रेंड, फैमिली मेंबर, एनीवन कैन बी योर मेंटर, कैन बी योर सपोर्टर, कैन गाइड यू थ्रू योर ऑल अप्स एंड डाउन्स. बट उसको, उस पर्टिकुलर फेज को पार किसको करना है? आपको खुद को करना है. आप खुद अपने आप को जानोगे तो अभी तो अपने आप तक पहुंच सकते हो. अगर मैं आपसे पूछूं आपका एम क्या है लाइफ में, हमें क्लैरिटी नहीं होती है, हमें पता ही नहीं होता कि हमें लाइफ में करना क्या है, हमें जाना कहाँ है, व्हाट एग्जैक्टली वी आर एमिंग फॉर, हमारा पैशन क्या है, हमें पता ही नहीं होता. हमें क्यों पता नहीं होता? क्योंकि हमने कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया होता. हम कभी डिफरेंट एरेनास को ही नहीं देखते हैं. So this is the journey where we will explore ourselves, through ourselves, for ourselves, right? So this is the picture. Can anyone tell me what it shows? What's your understanding from this? Students, hello, students. Ma'am, that intelligence is grow by time to time. No one is born with intelligence. Okay. Or every person we should never different stop skills. I can't get you. Better please repeat. Every person have some different skills and intelligence. Definitely. And ma'am, we will only grow if we learn to take risks. Okay. One should explore ourselves, one should explore your thinking. Ma'am, what I think is one person has already picturized his intelligence, that what is actually going to look like, and the other person is still wanting to know what it will look like when I'll grow up and I develop new skills, and my intelligence will also grow with time. Absolutely correct. A round of applause to you. That's really the way, out of the box thinking. Start looking out of the box. Creative thinking करो. सोचो कि उसमें क्या लिखा है. आप ध्यान से देखो इस पिक्चर को. one lady is saying this is the way my intelligence is. उसमें me लिखा है, एक rock है वहाँ पे. वो rock क्या है? Rigid है. वो as it is है. It will not change in any circumstance. But
On the other hand, the other lady is saying, no, the intelligence will grow and develop like a plant, like a tree. जैसे वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं, हमारे इंटेलिजेंस, हमारे ट्रेट्स, हमारे टैलेंट्स भी ग्रो करते हैं. बच्चा, basically this picture is showing you basically two kinds of mindset. सबसे पहले mindset क्या होता है? Mindset is basically we all are born with specific talents and intelligence and abilities in us. Are those talents and abilities are changeable or they are static? This is the mindset. कि हमारा mindset क्या है, हमें दो चीजें पता है यार, हमारे अंदर ये सब चीजें हैं, हम इंटेलिजेंट भी है, ये मेरी स्पेशलिटी है, लाइक आई एम वेरी गुड इन राइटिंग, आई एम वेरी गुड इन डांसिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. So this is a mindset. But now here comes the picture of two mindsets, that is a growing mindset and a fixed mindset. So the lady who is fingering towards the stone, the fixed rigid stone, shows a fixed mindset. That means this kind of mindset basically shows that your intelligence, your abilities are static. अगर आप लाइफ में मूव करते हो तो अब वो वैसे की वैसी ही रहती है, अब उन्हें चेंज नहीं कर सकते या इम्प्रूव नहीं कर सकते हो. Second picture says growing mindset. Like as you move forward in your life, आप नई नई चीजें सीखते हो. फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी आप लोग सब यंगस्टर्स हो, सबको कार सीखने का बहुत मन कर रहा है. यू आर ऑल ईगर टू हाउ टू ड्राइव अ कार. अब आपको कार चलाना आपकी जीन्स में तो नहीं है, आप प्रैक्टिस करोगे तभी तो आपको कार चलाना आएगी ना. आप लर्न करोगे उसके बेसिक्स, आप सोचोगे वो कैसे होता है, आप अटेंड करोगे, क्लासेस अटेंड करोगे, सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे, तभी तो आपको कार चलानी आती है ना. सेम वे आपके जो ट्रेड्स हैं, आपके जो एबिलिटीज हैं, वो भी ऐसे ही होती है बेटा. जैसे जैसे आप लाइफ में कुछ नया लर्न करते हो तो आप अपने ट्रेड्स एंड एबिलिटीज को भी बढ़ा सकते हो. कुछ चीजें हमारे अंदर फिक्स होती हैं, अनडाउटेडली दे आर फिक्स्ड, वो हमारे अंदर हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें बढ़ा नहीं सकते हैं. यस, वी कैन इम्प्रूव देम बाय लर्निंग, बाय ग्रोइंग, बाय प्रैक्टिसिंग. So which kind of mindset do you all have? Optimistic. Changing mind. Changing mindset. How changing mindset? Can you please explain? Pragmatic. Sorry. Please repeat. Pragmatic. Okay. You're not audible, bacha. Every day growth. Absolutely. So you have you should. I think yeah, we all should have a growing mindset. This is a research by a very famous psychologist from Stanford University, Miss Dweck. She has recently said that we all have two kinds of mindset, fixed and growing. But we all should focus on the mindset of growing mindset. Why? The reason is that with this growing mindset, we can develop and understand our talents and abilities, and we can develop them, improve them with our efforts, with persistency, with consistency. So आपको पता है फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट में डिफरेंस क्या होता है? लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू दिस पिक्चर. फिक्स्ड माइंडसेट कहता है कि भाई मेरा फेलियर ना मेरी एबिलिटीज की वजह से हुआ है, कि मुझे ना ज्यादा अच्छा लिखना नहीं आता तो इसलिए मैं फेल हो गया. बट ग्रोथ माइंडसेट कहता है अरे कोई नहीं, मैं फेल हुआ तो क्या हुआ, आई विल लर्न, इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू ग्रो अगेन, टू लर्न न्यू थिंग्स. ठीक है. अब फिक्स्ड वाला क्या होता है? फिक्स्ड वाला बोलता है अरे यार मेरे को तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, आई एम वेरी फ्रस्ट्रेटेड, मैं ऐसे नहीं हो सकता, आई एम गिविंग अप. बट the growing mindset will say life is a challenge and we need to accept the challenges, so we keep on trying, because we all know that success never comes easily. It really requires a lot of hard work and patience. So this is our growing and fixed mindset. पता है आप लोगों को ना क्लास में, even you should not be hesitating even asking a stupid and silliest question. You should ask again and again. Sorry. अच्छा, अब आप मुझे बताओ अपना ग्रोइंग माइंडसेट कैसे डेवलप कर सकते हो आप? हाउ यू विल गोइंग टू डेवलप योर ग्रोइंग माइंडसेट? Ma'am, by taking things more supportingly.
supportively. Please repeat. By taking things more supportively. Okay, or with positive Ma'am, by attitude. accept challenges. yeah, By by accepting giving up. challenges, by not giving up, right? Or Ma'am, By having a practice positive positive. Respecting attitude. your flaws Respecting and yourself and working your hard on them. actions. By nice, more. और कैसे कर सकते हैं? Ma'am, you got a question. Ma'am, Ma'am, by by learning problem new ability. skills. Confidence. By challenging the challenge Replacing the itself. word failure with the learn. Sorry, I can't hear Accepting you. your flaws Ma'am, by Ma'am, may I challenging the speak? challenge itself. Beta, answer one by one. Have patience, okay? और बताओ. The session is going on. It's for open discussion. You all are free to give your inputs. By being Ma'am, creative. By being creative, right? Or Try learning different By tactics. accepting your flaws and growing up and working on them. absolutely right. using Or words By that Thank you, ma'am. evoke the Replace the strength word and failure with success. the word learning. By gaining knowledge. by gaining knowledge, etc., etc. We have a By lot of believing ways in to. ourselves. Yeah, beta, please speak. By Ma'am, believing in ourselves. using those words that evoke the strength and success of the person. एब्सोल्युटली राइट. और अब आपने ये बहुत जनरलाइज मुझे बताया. अब आप मुझे बताओ सिंपल तरीके से कैसे कैसे छोटे छोटे तरीके से आप अपना ग्रोइंग माइंडसेट को डेवलप कर सकते हो. बिकॉज देखो लाइफ में फिक्स माइंडसेट रखोगे तो यू विल नेवर ग्रो. आप अपने आप को नर्चर ही नहीं कर पाओगे, नई चीजें नहीं सीख पाओगे, एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे. सो वी ऑल शुड फोकस ऑन हैविंग अ ग्रोइंग माइंडसेट. या बताओ बताओ बेटा. Ma'am, by being Ma'am, motivated. By not ma'am, giving by, up. By या taking बेटा स्पीक. opportunities that comes our way. by Ma'am, हाँ by जी exploring बोलिए. the outside world. Yeah, definitely thinking out of the box, have creative thinking. अच्छा चलो अभी आपने मुझे बताए स्ट्रैटेजीज बताई Learning आपने from our हमें. mistakes. अच्छा बात बताओ अभी स्ट्रैटेजीज करने से क्या मिलेगा आपको. गेट व्हाट यू विल गेट. आर यू एबल टू सी द स्क्रीन व्हाट्स रिटन देयर. Yes, Yes, ma'am. ma'am. प्लीज रीड इट आउट. Strategies to Put develop a yourself winning in mindset. challenging. Okay. Put So yourself in challenging situations. yeah, so what that mean? Put yourself in a challenging new situations. What happens? हम हमेशा ना comfortable zone में रहते हैं. We always stick by a comfortable zone. Like जैसे किसी को stage fear होता है तो वो कभी participate ही नहीं करता. वो कहते हैं नहीं नहीं यार मैं नहीं जा रहा, मुझे डर लग रहा है. अगर मैंने कुछ गलत किया तो सब मुझ पे हंसेंगे, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे. They all will mock at me and इससे मेरी dignity ना lose हो जाएगी. We all have a thinking जिनको बहुत fear होता है. But no, you are wrong बच्चा. Pull up your socks and fear that and face that fear. Because when you take up new challenges, जब अपने आप को चैलेंज करोगे ना तभी आप नया सीख पाओगे. आपने एटलीस्ट इतने गट्स तो हैं, आपने इतनी हिम्मत तो दिखाई कि आप स्टेज पे गए. आपने चलो वहां पे फंबल किया, आप रुके भी, बट जरूरी नहीं है हम एक बार में सब कुछ सीख जाते हैं. सब कुछ आता है. आज मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ मेरे खुद का. व्हेन आई वाज इन कॉलेज in my BTech time, I went up on the stage and I just fumbled up. Debate competition tha and I fumbled up so badly that even my classmates, my batchmates just started mocking at me, and it was so demotivating for me. But from inside, I was like, if I am on the stage now, I have to speak. मैंने एक आधा घंटा बोला, irrespective of गलत बोला, सही बोला, किस तरह से बोला, I said it. After that, when I come out, when I just finished up everything, people appreciate me, especially my teacher. Why? She praised me because praising someone is really the best thing you can change in someone. She said, at least I have the guts to go on the stage and fight with my fear openly. So this is the way you have to do. अच्छा और इसमें से आप बताओ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइंड टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम स्ट्रेसर्स. इस टाइम का क्या मतलब हुआ? Ma'am, have a company which supports you. या नाइस. और एनीवन एल्स वांट टू Being ऐड away समथिंग? from negativity.
No, not at all. It's not say कि being away from activity. Instead, it's say have some relaxation. अच्छा, oh, sorry. Negativity. Yeah, absolutely correct. You should have some relaxation time for yourself. You should applaud. You should praise yourself. There is a point which says keep a folder of your proudest moments. Why? Can anyone tell me why you should keep that folder or memories? Why? To To motivate Because be we yourself. motivated. To Yeah. motivate us. एक्चुअली जब हमें पता है ना कि हम आपको पता है आप बीबीए में आए हो। अब आपको यहाँ पे नए सब्जेक्ट्स मिलेंगे, आपको फाइनेंस मिलेगा, आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मिलेगा, ऑपरेशंस मिलेगा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मिलेगा, मार्केटिंग मिलेगी। देयर विल बी सो न्यू सब्जेक्ट्स टू यू। कुछ सब्जेक्ट आपको इजी लगेंगे, कुछ बहुत टफ लगेंगे, कहेगा यार मेरे से हो ही नहीं रहा, मैं तो कर ही नहीं सकता, मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। फिर उस टाइम पर अपने प्राउडेस्ट मोमेंट्स देखो। आप देखो कि आपने लाइफ में पहले भी चैलेंजेस फेस किए हैं और उन चैलेंज को फेस करके आप विन करे हो। आप सबसे बड़े एग्जांपल हो ना, अपने 12th के बोर्ड एग्जाम दिए। बोर्ड एग्जाम जैसा प्रेशर तो शायद ही कहीं होता होगा, राइट? आपने उसको भी फेस कर लिया बहुत अच्छे से। तो जब आप अपने अच्छे मोमेंट्स को याद करते हो ना, तो वो एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है आपको इंस्पिरेशन के लिए। आप उससे एस्पायर करते हो टू अगेन डू समथिंग न्यू। अब ये बताओ, सिंपल मॉर्निंग रूटीन का मतलब what is the meaning of simple morning routine? ma'am, in the morning we should talk positively towards Yeah. ourselves. अपने Yes. आप से अच्छी बात करनी Absolutely. चाहिए. Self-talk. Absolutely correct. You have said a very wonderful point, bacha. Self-talk is really a need of this hour. जब तक आप अपने आप से बात नहीं करोगे कि आप अपने लिए क्या चाहते हो, आप अपने लिए कैसा चाहते हो, और what you want in your life, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ जा रहे हो। और क्या मतलब हुआ? Anyone else would like to contribute? Develop a simple morning routine is also focusing on your habits. Develop the good habits in you. आप बीबीए में आए हो, you should now inculcate a habit of reading newspaper, reading articles, autobiographies. Start writing. जो आपके thoughts हैं उनको words दो, ताकि आप उन्हें actually pen down करो, क्योंकि thoughts कभी कभी हमारे vanish हो जाते हैं, but once you pen them down they are there with you. So have that simple routine, make some basic habits. सुबह उठकर पॉजिटिव सोचो, एक पॉजिटिव माइंडसेट करो, बिकॉज एवरी डे इज अ न्यू डे। आपको पता ना, स्टॉर्मी डेज के बाद भी सन आता है। सो सेम, एवरी डे ब्रिंग्स अ न्यू होप। सो इसलिए बी पॉजिटिव, स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर, inculcate good habits in you, and focus on new things in your life. And what is the meaning of this Ma'am, may I avoid speak? stagnation? Yeah, better speak. मैम क्योंकि जब मैम इन द मॉर्निंग व्हेन वी स्पीक पॉजिटिवली तो वो उसकी वाइब्रेशन थ्रू आउट द डे रहेगी. Absolutely. जैसे हमने सीक्रेट पर, you have you heard of the secret book and the movie? What this says, what we think is what we attract from the universe. आप नेगेटिव सोचोगे तो आपको सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव होगा, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। तो ये डिफरेंट तरह की स्ट्रैटेजीज होती है कि हम अपने विनिंग मतलब ग्रोइंग माइंडसेट बनाएं। हमें पता है चैलेंजेस हमेशा हर जगह होते हैं, बट क्या उन चैलेंजेस को हम फेस करें या फिर उनको चुप के बैठ जाएं? कब तक चुप के बैठेंगे? लाइफ इज नॉट अ इजी केक वॉक, इट्स रियली अ टफ थिंग। यू नीड टू पुल अप योर सॉक्स एंड फाइट इट लाइक अ वॉरियर, and always listen to your instinct. Whenever you feel like your gut feeling is the most मतलब मैं अपने लिए बोल सकती हूँ। आपको पता है, I have done MBA from BBIMR, and I was looking forward towards a job. मेरा मोटो था कि मैं जॉब लूंगी, I'll settle down and everything. But when I was in this journey of MBA, मैंने बहुत सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया, क्लास में इंटरेक्शन किया, हमेशा डिस्कशंस में पार्ट लिया। इवन इफ आई वाज रॉन्ग इन आंसर्स, आई अगेन स्टूड अप एंड आंसर्ड। तो इससे क्या होता है, आपके कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एंड यू नो व्हाट, धीरे धीरे मेरे टीचर्स, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बताया कि आई हैव अ वेरी गुड क्वालिटी, जो मुझे भी नहीं पता थी, ना मैंने इसके बारे में कभी सोचा था, that I can explain concepts, I can teach someone very good, and now you see I am a teacher myself.
So this is the thing. आपके रास्ते में जो कुछ भी आता है, you just take it up. क्या पता वो आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाए. You never know that. Okay. तो अब ये तो हमें पता था, आपने स्ट्रैटेजीज बनाई अपना माइंडसेट बनाने के लिए. अब मुझे एक बात बताओ, आपने स्ट्रैटेजीज तो बनाई ग्रोइंग माइंडसेट बनाने के लिए. अब जब अपनी लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट चीजें करते हो, तो आपको पता है कि आपका इंटरेस्ट एरिया कहाँ है, हमें क्या करना अच्छा लगता है, जो हमारे इंटरेस्ट का होता है या जो बोरिंग होता है. इंटरेस्ट इंटरेस्ट का होता है. तो अच्छा एक बताओ, आप अपना इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, किस किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो. आपके पास स्ट्रैटेजीज हैं, ये आपके सिंपल. अब पता है बेटा, देयर आर 100 मोर स्ट्रैटेजीज देयर, बट आई हैव जस्ट पेन डाउन फ्यू. देयर आर मेनी मोर, जिसके कोई एंड, दे आर एंडलेस. बट नाउ यू जस्ट टेल मी, आपने एक अपना सोचा, स्ट्रैटेजी बनाई दिमाग में, मुझे अच्छा सोचना है, मुझे अच्छा करना है, मैं को चैलेंज लेना है लाइफ में, नई नई चीजें सीखनी है, फेलियर से भी मुझे लर्न करना है. तो आप ये सब स्ट्रैटेजी के साथ क्या वेज ढूंढोगे जिससे अपने इंटरेस्ट ढूंढ सकते हो आप, क्योंकि आपको तभी तो मजा आएगा ना जब आप इंटरेस्टिंग काम करोगे. We can self-introspection. Sorry? We can do self-introspection. Absolutely. और कैसे कर सकते हो? By trying new and We new can things. develop ourselves. How you will develop? The question is this: how you will develop yourself? समझ में तो आ गया, हमें राइट माइंडसेट लेना है, बट कैसे करोगे, वेज क्या है उस तक जाने के? By exploring new things. By exploring new things. और एक्सप्लोर कैसे करोगे? मेरे को ये जानना है कि आपको ये पता है एक्सप्लोर करना है, पर एक्सप्लोर कैसे करोगे? Knowledge first of all. Participating in group. Participating in different fields. By taking opportunities. Gaining of By basic taking knowledge. up the new opportunities in life. एब्सोल्युटली. और कैसे करोगे? अभी आप कॉलेज में आए हो, ठीक है, आपने इस तरीके से सोचो, अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा सा मोल्ड करो. नाउ चेंज योरसेल्फ, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, अपनी क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटीज को लेके आओ, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करो. आप ये देखो कि आप अपना ये सब जो स्किल्स होती है ना, आप कैसे कैसे कर सकते हो, इनको अपलिफ्ट कैसे कर सकते हो. हाउ यू कैन अपलिफ्ट ऑल योर स्किल्स. आप कॉलेज में हो, कॉलेज में क्या क्या होता है बताओ? पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं. Yes. Yes. So you can participate in these. चलो, मैंने आपके लिए कुछ वेज निकाले हुए हैं, अब आप मुझे समझाओगे, बट आप मुझे नहीं बताओगे आप इन सब से क्या समझते हो. What is the first point of organizing and participating in events? What do you mean by that? Class, let's interact. Let's learn from each other, na? Please answer. Events such as colleges में, you should take the responsibility to organize them. Being prepared for every event. तो उससे क्या होगा? Volunteer. हाँ, volunteer करने से क्या होगा? What will happen? Our confidence will increase. We'll gain confidence. Grow and learn how to do teamwork. Yeah, absolutely correct. हमें टीम वर्क आएगा, और क्या क्या आएगा हमें? It will boost our confidence and encourage us to participate more in different fields. Nice. और what else we'll learn? Skills. We'll have these skills. हमें ये skills मिलेंगी. हमें लीडरशिप क्वालिटीज कैसे मिलेगी? आप ऑर्गेनाइज करते हो, एक ऑर्गेनाइजिंग टीम है आपकी, तो उसमें आपका कोई सीनियर होता है, आपका कोई सबऑर्डिनेट होता है, आपका कोई जूनियर होता है. तो अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हो, आप इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो, आपको चीफ गेस्ट आना है, पर आपका अभी चीफ गेस्ट आया नहीं है, और आपको क्राउड को हैंडल करना है, अपनी टीम को लीड करना है, तो व्हाट विल इट विल हेल्प इन लीडरशिप क्वालिटीज. डिसीजन मेकिंग पावर्स आएंगे आपके अंदर. हाउ यू विल टेक एन इंस्टेंट स्पॉन्टेनियस डिसीजन, ऐसा डिसीजन जो सबके लिए बेस्ट हो, दैट इज योर बेस्ट डिसीजन. टीम वर्क. आप अच्छा मुझे एक एग्जांपल दो, मुझे एक आपसे क्वेश्चन है. टीम वर्क है, जैसे आप लोग अभी न्यू हो, यू ऑल आर न्यू टू ईच अदर, ठीक है, अभी आप लोग इतने, आप लोगों का फेमिलराइजेशन नहीं हुआ, बिकॉज अभी थोड़ा फेस टू फेस नहीं मिल पा रहे इस पेंडेमिक की वजह से, बट यस वी स्टिल आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू यूज द टेक्नोलॉजी एंड गेट टू नो ईच अदर.
तो जैसे अब आपको मैं असाइनमेंट असाइन करती हूँ फॉर एग्जांपल, एंड आई मेक अ टीम ग्रुप ऑफ 5 पीपल. अब उसमें 5 अननोन बंदे हैं, तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? कैन एनीवन टेल मी क्या क्या हो सकता है? मैम एवरीवन हैव देयर ईगो, तो हमें उनकी ईगो को करना पड़ेगा कि बिल्कुल टीम में वो ना हो, कंसेप्ट टीम में ना हो. अच्छा ठीक है. और Ma'am, there can be some specific tasks will barriers be in assigned. communication. yeah, nice. And everyone will try to adjust. और क्या हो सकता है? One has to be clear about it, points and all. Yeah. So अभी आपको दिख रहा है मैंने कौन सी पीपीटी खोली? Skills required for BBA. That slide is visible to you all? Ma'am, by contributing the work according to their skills. Yeah, absolutely. So देखो आप सबको सब कुछ पता है. It's just हमें ओरिएंट करने की देर है, हमें एक्सप्लोर करने की देर है. हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत जरूरी है to make yourself being known to everyone. You should be heard by everyone. उसका peer learning. आप मुझसे कुछ सीखोगे, मैं आपसे कुछ सीखूंगी, आप आपस में कुछ सीखोगे. कोई किसी चीज में अच्छा है, कोई किसी चीज में अच्छा है, तो from each other. टाइम मैनेजमेंट करना, ये सब चीजें हम अपने डिफरेंट एक्टिविटीज से. तो सेकंड एक्टिविटी क्या आती है कि गो फॉर इंटर्नशिप्स. आपके बीबीए में देयर इज शेड्यूल दैट यू हैव टू गो फॉर ट्वाइस समर इंटर्नशिप्स एंड यू हैव लास्ट इंटर्नशिप. सो इंटर्नशिप आप कैसे करोगे? आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, आपको एरियाज पता चलेंगे, आप उसमें देखोगे कि मुझे ये एरिया सूट करता है या नहीं करता. तो इंटर्नशिप करने से क्या आएगा आपको? यू विल गेट नो अबाउट ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे वर्क होता है, टीम वर्क के साथ कैसे वर्क होता है, नए एरिया, नए चैलेंजेस कैसे एक्सेप्ट करते हैं. Yeah. Now explain another point. Anyone of you? Why it's important to build a strong network? Can you please repeat the question? Why it's important to build strong network? It helps in gain confidence. We want to grow, we should have strong networks. Okay, and something more? Basic knowledge, engaging of basic knowledge. So that It will create the name and fame. Ideas. Okay, और क्या बहुत close हो, थोड़ा सा और try some a bit more. So that Will we can create the name and fame of a company. Yeah, And so that we have right. people who we can go to for help. Yeah, absolutely. Ma'am, So references why? can help in future. So that we Yeah, can exchange our definitely. ideas and gain more knowledge from other people. Absolutely. तो आपको आपके इंटरेस्ट एरिया में तो पता, आपका नेटवर्क स्ट्रांग होता है when you are surrounded by good people, when you have encouraging and support, when you have a lot of people with you. आप उनसे गाइडेंस ले सकते हो, आप उनसे समझ सकते हो कि अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है. फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर सीनियर्स. जैसे हम बोलते हैं ना एग्जाम्स आ रहे हैं, आप हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, तो गाइड यू. और इंटरेस्ट एरिया आपको कभी डिस्कस करना, आपकी कोई प्रॉब्लम है, डिस्कस विद देम. अगर आपको कॉलेज के डिफरेंट क्लब्स ज्वाइन करो, उससे क्या होता है, जैसे ड्रामेटिक है, डांस है, यू हैव मार्केटिंग, यू हैव मेनी अदर क्लब्स दैट आर अवेलेबल इन योर कॉलेज. तो उन क्लब्स को ज्वाइन करने से क्या होता है, आपको पता चलता है कि आपका की इंटरेस्ट एरिया क्या है. हम सब कुछ करते हैं लाइफ में. अच्छा एक बात बताओ, हम बर्गर खाने जाते हैं, तो क्या हमें सारे बर्गर पसंद आ जाते हैं? Do we like the taste of each and every burger? Why? No. Why? Because we don't have the same taste. Absolutely, you don't have the same taste. Similarly, you don't have the same traits. आपकी talents, आपकी abilities, आपके traits, they all have different and unique, ourselves. तो उस uniqueness को Ma'am, sorry to interrupt you, but your voice is not clear at all. It's cracking. ना हमें अगले बहुत हम ऐसे हमने now it's clear. Is it clear now? Yes, ma'am, it is. Yes, Yeah, I'm saying thank you. I'm saying that अभी हमने पता चला ना कि इंटरेस्ट एरियाज कैसे डेवलप करते हैं. अब आपके अंदर कुछ अच्छी स्किल्स हैं, लाइक यू मे गुड एट राइटिंग, शी मे बी गुड एट कम्युनिकेशन, ही मे बी गुड एट analysis, he may be good at problem solving tactics. So हमारे सबके अंदर कुछ ना कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं.
तो व्हाई नॉट टू इनवाइट देम इन आवरसेल्व्स। लेकिन सबसे मेन पॉइंट क्या होता है, हमें पता सब कुछ होता है पर हम इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। अगर आज आपने जो भी आपका ओरिएंटेशन हुआ है, जितने भी आपके सेशंस हुए हैं, उन सेशंस में से अगर आप एक भी सिंगल चीज अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो ना, दैट विल बिकम अ लाइफ चेंजिंग पॉइंट फॉर यू। सो लर्निंग, पढ़ना, सुनना सब चलता है यार, सब कुछ होता है, बट उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करना उतना ही जरूरी होता है। अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे ना तो कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर फिर आप अगर रोते रोते अरे यार हमें तो क्या करना है, बीबीए करनी है, डिग्री लेनी, ठीक है काम हो गया। अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप फैमिली के बिजनेस में जाओगे या जॉब करोगे या फिर मास्टर्स की डिग्री करोगे, आगे कोई भी। तो इन सब चीजों के लिए भी आपको बेसिक स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, बेसिक चीजों की जरूरत होती है जो आप इन 3 इयर्स में एक्सप्लोर कर सकते हो। अच्छा, ये जो लाइन है मेक लिंक्डइन योर न्यू फेसबुक, आपको लिंक्डइन के बारे में पता है क्या होता है लिंक्डइन? Yes, ma'am. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज लिंक्डइन? Ma'am, we update It help in creating network. Sorry, Ma'am, it help in please creating repeat. network. It helps in It creating help in network creating और network. प्रोफेशनल्स यूज करते हैं। कौन यूज करते हैं बेटा? या फील फ्री, मैं आपको जज नहीं कर रही हूँ ना। प्रोफेशनल्स या प्रोफेशनल्स यूज प्रोफेशनल करते हैं। यूज It करते is हैं actually career। a social networking site just like Facebook, but specially designed for professionals or business purposes. एब्सोल्युटली करेक्ट। हम इंस्टाग्राम पे स्टॉक करते हैं लोगों को, अरे वाह यार देख उसने नई गाड़ी ले ली, अरे ओ कितने फॉलोवर्स हो गए हैं यार, ये तो फैशन ब्लॉगर बन गए, फूड ब्लॉगर बन गए, तो लाइफ में कितना कुछ कर रहे हो और हमें देखो वहीं बैठे हैं। यार ये फालतू की चीजें छोड़ो, ये बेकार की चीजें स्टॉक करना, ढूंढना फिरना, उससे अच्छा अच्छी अच्छी चीजें करो। लाइक यू शुड एस्पायर, यू शुड लुक टूवर्ड्स जो आपको इंस्पायर करते हो, इंस्पायर करते हो। फॉर एग्जाम्पल यू कैन स्टॉक द थिंग, people like Jack Ma, Elon Musk. We have so many examples, Narendra Modi. We have so many hands. I know some find it funny, but सबका अपना opinion होता है। Mr. Narendra Modi has very good leadership qualities and he is a very influential character. उनकी बातों से लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, तो ये भी उनका एक बहुत पर्टिकुलर ट्रेट है जो एक लीडर के अंदर होना चाहिए। आप इस एज पे इंस्टेड ऑफ बीइंग रोमिंग अराउंड हेयर एंड देयर, फोकस, नई नई चीजें सीखो। आप ब्लॉग्स पढ़ो, आप ऑटोबायोग्राफीज पढ़ो, बिजनेस आर्टिकल्स पढ़ो, या नॉवेल्स पढ़ना स्टार्ट करो, न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो, और साथ में लिखने की हैबिट लिखो। वाई? क्योंकि जितना लिखोगे ना, आपके आइडियाज आपके अंदर जितने भी आते रहते हैं ना, यू हैव सो मेनी आइडियाज। अभी आप ब्रेनस्टॉर्म करो अपनी किसी भी चीज को लेके। यू आर अ न्यू एल्वा एडिसन जो थे, उन्होंने एक बारी में तो बल्ब नहीं बनाया था ना, उन्होंने भी 100,000 कितने सारे ट्रायल्स किए थे, तब फाइनली ही वाज एबल टू मेक बल्ब। तो आपके भी जितने आइडियाज हैं, आप एक दिन एक आइडिया आया फिर चला गया, फिर दूसरे दिन आया चला गया, इंस्टेड आप उसको एक जॉट डाउन करो। क्या पता धीरे धीरे आपके आइडियाज कोई आपको न्यू बिजनेस वेंचर या किसी भी तरह के एक नई अच्छी अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं। सो ट्राई टू फाइंड आउट योर इंटरेस्ट एरियाज एंड अपने टीचर्स के साथ एसोसिएट करो, अपने टीचर्स का रिसर्च पेपर्स लिखो, उनसे गाइडेंस लो कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। एंड वन आई मस्ट से was last thing, you should focus on your academic lessons also. Now whatever you have studied was different and now what you are going to study is totally different. अब आप अपना पर्सपेक्टिव वही बच्चों की तरह वही नहीं बस रट लिया, क्रैम कर लिया और पेपर में लिखा है नंबर आ गए। नो, जो आपने पढ़ा है उसे इम्प्लीमेंट भी करके देखो कि डज इट रियली वर्क। प्रैक्टिकल, क्योंकि लाइफ में थ्योरी काम नहीं आती है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस काम आता है। तभी आपको जितनी प्रैक्टिकल नॉलेज जहां से मिल सकती है, टेक एज मच एज नॉलेज एंड प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन फ्रॉम एनीवन। अब जैसे वेंडर आजकल आपने देखा ऑनलाइन का जमाना आ गया, अब छोटे छोटे वेंडर्स के पास भी पेटीएम होता है, पेपैल होता है, ये सब तरह की एडवांस चीजें होती हैं। तो उनको क्या वो चीजें आती थी यूज करनी? डू दे नो अबाउट इट? No, ma'am. The time has made them understand about the latest technologies and things. टाइम ने भी बताया, कुछ लोगों ने सिखाया, कुछ किसने उनकी हेल्प भी की होगी ना। तो आप भी ट्राई करो, आप अपने लिए नए नए प्रोजेक्ट्स में अपने आप को इनकलकेट करो। मैंने कल एक वीडियो देखी थी, उसमें पता क्या था कि लाइक
ऑल आर ग्रोन अप्स एंड हमें जैसे हम कहते हैं ना कि हमें कुछ डिफरेंट करना है, कुछ डिफरेंट करना है, हमें कुछ एक्सपीरियंस चाहिए, हमें एक्सपीरियंस नहीं मिलता, हमें कोई जॉब नहीं मिलती इतनी इजीली, हमें कोई कुछ करने को नहीं देता। एक नॉर्मल वेंडर है, आप उसका प्रमोशन करो, उसे फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे प्रमोट करो, उसकी हेल्प करो, तो उससे क्या होगा, इट विल गो हैंड इन हैंड, उसका भी प्रमोशन होगा, उसका भी काम होगा, उसको भी अर्निंग्स मिलेंगी और आपको बदले में क्या मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा। So these are the little things from which you can learn about yourself, explore the new areas, and you can develop a lot of skills, your interpersonal skills, how you talk, how you present yourself. Your personal development is really important, and time management, it's really very important in today's time. And event management, सुना आपने आजकल कितना बढ़िया करियर है ना इवेंट मैनेजमेंट का। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, अब ma'am. अब सबने यस बोला, अब हमारे इवेंट्स अलग अलग होते हैं ना, वैसे ही हमारी लाइफ का हर एक चीज, हर इवेंट है। अभी हमने ये ओरिएंटेशन का जो मेरा सेशन हमने ये लिया, इट वाज एन इवेंट, क्योंकि आज मैंने आपको जो सेशन दिया है, मैं ये सेम सेशन आपको दोबारा वैसे उसी तरीके से नहीं दे सकती, चाहे पीपीटी सेम रहेगी, चाहे मैं सेम रहूंगी, चाहे आप सेम रहोगे, पर हमारा यूनिकनेस जो है ना टाइम की, हमारी थिंकिंग एबिलिटीज वो डिफरेंट होती हैं। तो इसीलिए ट्राई टू इनकलकेट द ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। अच्छा एक बात बताओ, आपको पॉकेट मनी मिलती है? No, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. अरे थोड़ी बहुत तो मिलती होगी मम्मी Yes, पापा से, yes, चलो ma'am. 100, 50, 500, ma'am. 1000 ऐसे तो ले लेते हो ना। 400 रुपए मिलता पॉकेट है। मनी मिलती, 400 रुपए ma'am, मिलते yes. हैं, तो आप एकदम से 400 रुपए उड़ा देते हो, ऐसा वाइजली यूज करते हो? Wisely. Wisely. Wisely used. Wisely. अब आप सब वाइजली बोलोगे, कुछ लोग तो सच में एवं भी उड़ा देते हैं, इसमें क्या झूठ है, हो जाता है। बट ये देखो, चलो मिलते नहीं है तो मिल जाएंगे, कोई नहीं, आप कॉलेज में आ गए ना, यू विल गेट इट। सो मेरी बात ये आपको एग्जांपल ये देने का था कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको 1000 रुपीज है और आपको पता है कि आपको इस हफ्ते में 1000 रुपीज चलाने हैं, तो आप क्या करोगे, पहले ही 2 दिन में सारे पैसे उड़ा दोगे और लास्ट तक कुछ रखोगे? लास्ट तक रखेंगे लास्ट तक। रखेंगे मैम। रखोगे ना यार, रखेंगे मैम, क्योंकि तुम ethically। प्लान करोगे उस चीज को कि हाँ भाई हमें पता है हमें पूरा हफ्ता निकालना है, आखिरी दिन तक हम पता चले पैसे नहीं है, हम भूखे मर रहे हैं, हमारे पास कुछ खाने के लिए नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, देयर मेनी सर्कमस्टेंसेस। सो आप क्या करते हो, प्लान करते हो। तो ये क्या है, दिस इज नथिंग, दिस इज अ फाइनेंशियल प्लानिंग, पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग, आप बचपन से करते आ रहे हो। तो इसलिए फाइनेंस क्या है, नंबर मार्केटिंग। अब आप एक बार बताओ, आप इंस्टाग्राम पे जाते हो, आप फॉलो करते हो ना कितने सारे लोगों को, पेजेस को, आर्टिस्ट को, वो क्या है, मार्केटिंग ही तो कर रहे हो आप उनके लिए। अब जितने उनके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, उनकी मार्केटिंग तो हो रही है, अब उनको क्या कर रहे हो, फेमस कर रहे हो। सो ऑल थिंग्स आर इन द एनवायरमेंट इन अ डे टू डे लाइफ, यू जस्ट नीड टू इनकॉर्पोरेट देम। गॉट इट? यस मैम। यस मैम। अब आपको बस एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, जैसे आज हम 3 इयर्स का प्रोग्राम है हमारा, तो आई जस्ट वांट टू थोड़ा सा माइंडसेट और ब्रॉड करना चाहती हूँ कि अगर आपको देयर आर 2 ऑप्शन एट द एंड ऑफ योर बीबीए सेशन, you can opt for a job or you can go for your further studies, मास्टर्स भी कर सकते हो आप। अगर आप मास्टर्स करते हो तो यू हैव n नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, लाइक M.Com है, MBA है, MSc है, there are many subjects, many fields like travel and tourism, digital marketing, and there are many fields that have been arising nowadays. और अगर आप जॉब भी करना चाहते हो तो there are a lot of prospects that are available to you. You can be a finance manager, human resource manager, business consultant, accountant, project planner, wedding planner, digital marketer. You can be an entrepreneur. Entrepreneur का मतलब तो समझते हो ना? Yes, ma'am. यस Yes, ma'am. कौन होते हैं entrepreneur? हम जो अपने खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। Ma'am, who set up their own business. अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर आप provides ideas of business. वेरी गुड, यू ऑल नो दैट। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनते हो या फिर कहीं जॉब करते हो या फैमिली एंटरप्रेन्योरशिप में भी आते हो, तो जो भी आज हमने पढ़ा, जो ये सब स्किल्स रिक्वायर्ड होती है वहाँ पे या नहीं होती हैं? Yes, ma'am. होती हैं। और these skills are required, irrespective आप कहाँ पर हो, आप क्या पढ़ रहे हो, क्या आप नहीं क्या पढ़ रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आप फैमिली बिजनेस में हो या फिर आप फर्दर स्टडीज कर रहे हो, इन एवरीवेयर all these qualities are required। और अपने आप को
जानने के लिए हमें इन सब चीजों के थ्रू जाना पड़ता है. So always make sure that you are open-minded and ready to take challenges in life, because लाइफ में कोई भी चीज इजीली नहीं मिलती है. यू नीड टू वर्क हार्ड फॉर इट. एंड आजकल ना हार्ड वर्क नहीं होता है, आजकल स्मार्ट वर्क होता है. क्या होता है? स्मार्ट वर्क. स्मार्ट वर्क मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड गोल्स. जब तक आप अपने लिए डेडलाइन नहीं रखोगे ना, आप कभी काम नहीं कर सकते. एक बार बताओ, बोर्ड का एग्जाम में जिस पेपर में 7 दिन की छुट्टी होती थी, पढ़ते थे पूरे 7 दिन? नो मैम. नहीं पढ़ते थे ना. बोर्ड एग्जामिनेशन में जिसमें ज्यादा वेकेशन, जो वो प्रिपरेटरी हॉलीडेज होती थी, उस सारी प्रिपरेटरी हॉलीडेज में पढ़ते थे, आखिरी की में पढ़ते थे. मैम नो एक रात पहले 2-3 हॉलीडेज में जो प्रिपरेशन होती है, 2-3 दिन पहले पढ़ते थे, एंडिंग के टाइम पे. तो आप अभी से वो हैबिट चेंज करो. एक डेडलाइन बनाओ के लिए. हमेशा अपना फ्यूचर प्लान करके चलो कि हमें कल क्या करना है. सुबह उठो, प्लान करो आज हमें पूरा दिन कैसे निकालना है, आज हम क्या क्या करेंगे. आई नो बहुत टफ लगता है, बट धीरे धीरे हम सीख जाते हैं चीजें. तो इसलिए हमेशा अपनी चीजों को डेडलाइन, टाइम बाउंड करो, रियलिस्टिक गोल रखो. ये नहीं कि भाई मैं तो पहले ही दिन में ना, मैं तो पहली सैलरी से जैगवार खरीदूंगा. अरे आपको वेट करना पड़ेगा. उस तक पहुंचने के लिए पहले आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा. सो my I'm just overing my session with you all, and just wanted to again have an open mind, growing mindset. This is the journey of yours, through yourself and to yourself. अगर आप अपने आप को जानो, आपको पहचानोगे, तभी अपने आप तक पहुंच सकते हो. जरूरी, मैं ये नहीं कहती कि एकेडमिक्स मार्क्स लेके आना जरूरी नहीं है या जरूरी है. आज के टाइम में मार्क्स जरूरी नहीं होते हैं. क्या इम्पोर्टेंट हो कि नॉलेज, आपकी स्किल्स इंपॉर्टेंट होती हैं. बट हाँ, एट द एंड मार्क्स भी मैटर करते हैं, बिकॉज दे गिव यू एन एज, दे प्रोवाइड यू अ स्टेप फॉर योर career ahead. So and I'll say one picture for you. The line is just the beginning of a whole new race. It's not a finish line. Instead, it's another starting. It's of new thing and a new phase. Thank you so much, class. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, So, ma'am. how you like Thank the you, session? ma'am. Thank you, ma'am. Good. Thank you, ma'am. Any questions you want to ask? Thank you, ma'am. Oh man. No ma'am. Oh, Questions you want to ask? Any doubts? No, ma'am. Any doubts? Any problems you want to share? You want to ask? No, ma'am. No So, man. thank you. Thank you, ma'am. Thank you, and I Thank you, just ma'am. hope you get best out of your BBA, and think wisely and explore yours and find yourself a new one in this BBA. Thank you so much, class. Thanks a lot. Have a good day.